coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. ये बयान है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश का, जिन्होंने यूएन सुरक्षा परिषद के मंच से पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई है कि दुनिया सुनती रह गई। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बुलाई गई इस बैठक में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के फितना अल हिंदुस्तान वाले नैरेटिव को झूठा बताया, बल्कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को लेकर भी जमकर लताड़ा। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपने देश में सक्रिय आतंकी और उग्रवादी समूहों को रोकने में अपनी नाकामी छुपाने के लिए फितना अल हिंदुस्तान कहकर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये धार्मिक शब्दों में लिपटी हुई पाकिस्तान की नाकामी है, जिसका मकसद पाकिस्तान के आवाम को गुमराह करना है। दरअसल यूएन की बैठक में पाकिस्तान ने यूएनएमए यानी कि यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान और महासचिव की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में ही भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद कोई ला काटे मेन्यू नहीं है जहां अपनी सुविधा के मुताबिक नियम चुन लिए जाए। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों का मुद्दा बेहद ज़ोरदार तरीके से उठाया। भारतीय प्रतिनिधि ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई बड़ी संख्या में आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। भारत ने अपने बयान में साफ बता दिया कि पाकिस्तान की ये पूरी रणनीति अपनी घरेलू नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है और भारत के खिलाफ नफरत का माहौल बनाए रखने के लिए। भारतीय प्रतिनिधि ने यहाँ तक बता दिया कि पाकिस्तान में नफरत फैलाने के लिए एक संगठित फैक्ट्री काम कर रही है, जो अपने राजनीतिक और आर्थिक संकटों से ध्यान भटकाने के लिए भारत को निशाना बनाती है और वहाँ की आवाम को चूरन बांटती है। आप खुद देखिए कि भारत ने क्या कुछ कहा है। Let me reiterate. Dressing up a massacre as a military operation does not absolve the perpetrator. Killing, maiming, and orphaning civilians is not counter-terrorism. Espousing high principles of international law and Islamic solidarity while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan is a perfect example of hypocrisy. Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. This attempt to hoodwink the world will fail. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. The de facto coup by the military through the 27th Constitutional Amendment is only its most recent manifestation. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations. Only coordinated efforts of the international community can ensure that ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed and proxies of the LET such as the Resistant Front, along with those who facilitate their operations, no longer indulge in cross-border terrorism. We call on the international community to work together towards this noble goal. भारत ने यूएनएमए के आंकड़ों के हवाले से ये साफ कर दिया कि सिर्फ इस साल के शुरुआती 3 महीनों में ही सैकड़ों अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं, जिनके पीछे पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का हाथ था और इनमें बड़ी संख्या रमज़ान के महीने में हुई है, यानी कि इस्लाम के सबसे पवित्र महीने में भी पाकिस्तान ने खून किया। यानी पाकिस्तान जो मुस्लिम ब्रदरहुड का ढोंग रास्ता है, उसकी पोल इन आंकड़ों ने खोल कर रख दी। भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ISIL, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और द रेजिस्टेंट फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की। यूएन के मंच पर भारत ने साफ जवाब दे दिया और पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को चुनौती दे दी और उसे दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। आप भारत के इस एक्शन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत तक।